आज भी थोड़ा लेट हो गया ठीक है। फ्लिप has rows of cells, some of which are blocked and some are empty. He wants all empty cells to have water in them. He has two actions at his disposal. One, place water in the empty cell to remove water from a cell and place it in the another empty cell. An empty cell is between two cells with water. An empty cell is between two cells with water. It gets filled with water. An empty cell is in two cells. With water, it gets filled with water. Find the minimum number of times he needs to perform in action in order to fill all empty cells. अच्छा समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के लिटरली क्या है 3 डॉट्स है ठीक है डॉट है तो इसमें पानी डाल दिया Philip can put water in cells 1 and 3 इसका क्या करेगा can put water in cells 3 and 5 देखा ये 3 बढ़ जाएंगे move water from cell 5 and place it into cell 6 as cells 5 neighbors cell 4 and cell 6 have water इलस्ट्रेशन कुछ दिया है क्या अच्छा इस तरफ प्लेस कर दी तो ये हो गई और ब्लॉक तो ब्लॉक दिया शायद अच्छा ऐसा है तो कोई भी दो ब्लॉक्स का बीच का वो करने के लिए कितना होगा मान लो ब्लॉक्ड है ठीक है इसका बीच में फिल करने के लिए अगर एक है तो एक ही आएगा अगर दो ब्लॉक्स का बीच में दो पानी वाला है तो दो ऑपरेशन अगर 3 है तो भी 2 ही लगेगा यहाँ फिल कर दो या अपना फिल हो जाएगा अगर 4 है तो एक यहाँ प्लेस करो एक यहाँ पे प्लेस करो ये फिल हो जाएगा फिर इसको अगर मूव कर दो तो ये फिल हो जाएगा तो 2 ही है बेसिकली 2 ही है तो यहाँ टेस्ट केस क्या है इसके लिए 2 इसके लिए 2 अच्छा ठीक है
plus plus I plus 4. ठीक है, while I has done and as of 5. बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हो रहा है। बाय सेकंड केस में ना क्या दिक्कत क्या आ रही है? डस ऑफ आई जब तक ये है तो 4 4 अच्छा 22505 क्यों हो रहा है लास्ट में जब सब ब्लॉक्ड है? नहीं ये है ना, तो एक्सपेक्टेड 2 कैसा है इसका? इसका 2 ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, ये वाली कैच तो। क्या कर सकते हैं इसको? Remove water from cell and place it any other empty cell. When some are empty, he wants all empty cells to have water in them. He has 2 actions at his disposal. Place water in an empty cell. Remove water from a cell and place it in another empty cell. ठीक है? If an empty cell contains water, find the minimum number of times he need to perform action 1 in order to. यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, तो ये फिल हो गई। फिर क्या किया इसने? फिर इसको लेकर यहाँ पे फिल कर दी होगी। अच्छा, फिर ये वाली बीच वाली लेके यहाँ फिल हो गया होगा, फिर वापस बीच वाली फिल हो गई होगी, फिर वापस बीच वाली लेके फिर यहाँ पे वापस फिल कर दिया, तो ये 2 फिल हो गया। फिर वापस मतलब ये वाली बीच उठा के यहाँ डाल दी इसने। सही है, मतलब अगर काउंट ग्रेटर देन 2 है, check is equal to ठीक है। if check you have to run by also 10 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। Laura is a girl who doesn't like combinatories. Nemanja will try to convince her, otherwise Nemanja wrote some digits on the board. All of them are either 1, 2, 3. The number of digits 1 is A. अच्छा, he told Laura that in one operation select 2 different digits and erase them from the board. After that write the digit 1, 2, 3 from both erased digits. 2 different digits लेनी है and erase them from the board. After that write the digit 1, 2 or 3 different from both erased digits.
For example, take example, let's digits 1, 1, 2, 3. She can choose digits 1 and 3 and erase them. तो एक 1 उड़ा दी और एक 3 उड़ा दी इसने, ठीक है, 1 1 2 3. After that she has to write digit 2 so that end of the operation the board look like. अच्छा लास्ट में लिखनी है क्या? अच्छा लास्ट में लिखनी है. Nemanja asked her whether it was possible for only digits of one type to remain written on the board after some operations. If so, which digits can be achieved? Laura was unable to solve this problem. Asked for help. पहले से ही है तो ऐसा ही है. तो दो डिफरेंट डिजिट्स उठानी है. तो क्या करना है यहाँ पे? For the first only digit 1 remain. अच्छा on the board and 0 otherwise. Similarly, the second one should be 1 if possible. If possible after the operation only 2 digits remain on the board. अच्छा बहुत सिंपल है. देखो अगर सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है, 2 3 पहले 1 1 1 वाले कैसे सॉल्व करते हैं. एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है. तो क्या है, कोई भी दो अलग अलग उठा लो, इसको 2 बना के डाल दो, फिर 2 बन गई. अब तुम एक ऑब्जर्वेशन देखोगे तो एक ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जिनका दो अलग अलग है उनका एक एक काउंट कम हो रहा है, और जिनका इसको छोड़ के बाकी के डिजिट ना एक बढ़ रहा है. ठीक है, अगर 2 1 है और 3 2 है और 2 1 है, ठीक है, ये वाले कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें क्या करेंगे हम, सब 1 को देखने के लिए ट्राई करेंगे. तो 1 को सब 1 को रखने के लिए ना 2 3 है, सॉरी लास्ट में 2 3 आया, तो एक 2 उठा लो, एक 3 उठा लो और 1 ऐड कर दो अरे में. ठीक है, एक 1 ऐड हो गया, एक 2 और 3 कट गई. एक और 3 और 2 उठा लो, 3 उठा लो, ये भी कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा. तो 1 तो पॉसिबल है ना यहाँ पे, क्योंकि जो 1 से अलग सब 1 होने के लिए ना बाकी डिजिट्स अरेज करनी पड़ेगी, सिर्फ 1 को ऐड करना पड़ेगा. सो अगर 1 को हम अरेज कर रहे हैं, उस पर हम 1 नहीं डाल सकते ना. देखो एक 1 और एक 2 बच गई है, एक 1 और 2 उड़ा के तुम 3 डालोगे, ठीक है, फिर एक 1 और एक 3 उड़ा के वापस 2 डालोगे. समझ रहा हो ना मतलब क्या बोल रहा हूं मैं.
मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमें वन को हटाना है, मतलब वन को ऐड, सब वन बनाना है, ठीक है, अगर सब वन बनाना है तो क्या हम 2 और 3 को एलिमिनेट करनी है, ये तो पक्का है ना। 2 और 3 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 ऐड होगा। तो इसमें ये है कि नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 3s इक्वल होनी चाहिए, अगर है तभी पॉसिबल है, वरना नहीं। ऐसा भी है क्या? 59 प्लस 47 का सम कितना है? 106 है ये तो। अगर देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ 1 1 2 2 2 3 3, अगर मुझे सब 2 बनाना है तो एक 1 एक 3 उठा लो, एक 1 एक 3 उठा लो, 2 बन जाएगा। अगर सब मुझे 3 बनाने हैं सिर्फ वापस सेम वही वाला केस बनेगा, ठीक है। कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 2 बन सकती है क्या? मतलब 2 4 2 मतलब एक 1 फिर 2 3, ठीक है। सब 2 तो बन ही जाएगा, ये तो पॉसिबल है। मुझे सब 1 बनाना है तो एक 2 एक 3 कट के 1 आ जाएगा, फिर एक 2 एक 3 कट के वापस 1 आ जाएगा। तो अब इतना बच जाएगा बोर्ड पे। तो अब क्या करोगे, एक 1 और एक 2 कट के 3 बन जाएगा, और एक 3 और एक 2 कट के 1 बन जाएगा। ये वाला चीज देखा आपने? मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, इस वाले केस में हम ऑपरेशन से क्यों नहीं कर पाए? 1 1 2 2 2 3 3, इस वाले केस में हम ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर सब मुझे 1 बनाना है तो ऐसे ऐसे बन जाएगा हमारे पास, अरे ठीक है, एक 2 रह जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को लेके ऑपरेशन करूंगा, कुछ मतलब यहाँ पे 1 को छोड़ के कितना नॉन इक्वल एलिमेंट्स है, राइट, वो डिपेंड करता है। अब देखो 2 4 2 में 2 4 2 में अगर मुझे सब 1 बनाना है तो पेयर्स देखो 1 को छोड़ के कितना एलिमेंट्स पेयर्स है। यू आर गेटिंग राइट, मैं इसको एक्सप्लेन करने कर पा रहा, यहाँ पे 2 3 2 है, 2 3 2 है, तो यहाँ पे अगर मुझे सब 1 बनाना है, ये सब 1 बनाना है, ये वाली केस है। अगर सब 1 बनाना है तो देखो यहाँ पे 2 बार 3 2 3 2 कट कट जाएगा, समझ रहा हो ना। फिर एक 2 बच जाएगा, राइट, एक ही 2 बच जाएगा ना, जो ज्यादा है वही बचेगा। ये 2 जो बचेगा, अब देखो ये 2 जो बचेगा इसको मैं किसी और से 1 से ऑपरेशन करूंगा तो वो 3 बन जाएगा, फिर वापस वो एक ही 3 बनेगा ना। एक्स्ट्रा पेयर नहीं है जो इन दोनों के साथ में पेयर करके ये कर पाऊँ, ठीक है। 2 4 2 हो गया, अब 2 5 2 चेक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट उठाना है वो तो पता ही है हमें। एक 2 एक 3 उठा के 1 बन जाएगा, एक 2 और एक और 3, एक और 3 को उठा, अरे यार, एक और 3 को उठा के एक और 1 बन जाएगा। तो 4 2s, हाँ 4 1 एंड 2 3, राइट। तो 1 और 2 का उठा के बन जाएगा 3, ठीक है। फिर एक और, फिर 3 और 2 को निकाल के बन जाएगा 1, फिर 1 और 2, भाई ऑड है तो पॉसिबल नहीं है, इवन होने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1 बनाना है तो बाकी दो की सम जो है वो इवन होनी चाहिए। यही कैसे, अगर 82 47 59, अगर मुझे 1 बनाना है तो इन दोनों का सम इवन है, यस इवन है। अगर मुझे 47 बनाना है, बी बनाना है, तो इन दोनों का सम ऑड है, तो 0। गॉट इट। एट द सेम टाइम कोई एजुकेट है क्या, मतलब 1 1 1 ही हो तो 0 भी दे सकता है ना। वन से स्टार्ट है, वही सोच रहा था। अगर 0 आ गए तो फिर वो इवन बन जाएगा, पर कोई मतलब नहीं होगा उसका।
in A, B, C. If कोई ए वाला केस तो नहीं है, मतलब कि क्या बोलता हूँ मैं, कोई ये वाला केस तो नहीं है कि यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या बनाऊंगा मैं, अनलिमिटेड 2 से, इवन नंबर ऑफ 2 से, तो 1 2 2 2 2 2, ये 100 है, ये 2 बार 3 है, तो मुझे सब 1 बनाना है ना, एक 2 और एक 3 काट के 1 बन जाएगा, एक और 2 और एक और 3 काट के 1 बना दो, तो 3 1 3 1s हो गई, अब 2 2 कट गए तो 98 हो गया। अब क्या करोगे, अब रिकर्सिवली ऑप्स क्या करोगे, 3 1 98, राइट, 2 2 2 98 है, तो एक 1 और एक 2 काट दो, 3 ऐड करो, फिर वापस एक 3 और एक 2 कट करो, फिर 1 ऐड करो, मतलब क्या हो रहा है, अब क्या बताएं, अब 3 96, राइट, 3 1s ये रहे, 3 1s और 96, बस कोई मतलब नहीं, आप ये ऐसे होते होते वो 0 बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, सही। B plus C mod 2 C out 0 else C out 1, B plus C हो गया, अब B के लिए होगा A plus C, इसके लिए होगा A plus B, चिकन पॉक, बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं तो, this binary tree, getting left on getting left C non-C through a natural mutual friend, through no mutual friend, he figured out that यार ये नाम ना बहुत पढ़ने के लिए मुश्किल होती है, he figured out that Anjis really like binary trees and they decided to solve her problem in order to get her attention. Anji has Kexic, a binary tree with n vertices. ठीक है? Vertex 1 is the root and does not have a parent. All other vertices have exactly one parent. Binary tree है अंजी के पास, all other vertices exactly have one parent. Each vertex
can have up to two children or left and right children. For vertex, Anji tells Kexic index of both its left and right child tells him that they do not exist. अरे यार सच में पता नहीं चलता कि मेरा इंग्लिश वीक है या फिर क्वेश्चन पढ़ना ही मुश्किल है. For each vertex, Anji tells Kexic index of both left and its right child or tell him that they don't exist. अरे यार, each of the verses has letter SI on it, which is either U, L, R. अब जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है. With the letter U, he moves to its parent, left child, right child. Before his journey, he can perform the following operation: choose any node and replace the letter on it in another one. You are interested in any operations है यहाँ पे. You are interested in the minimal number of operations he needs to do before his journey, such as that when he starts his journey, he will reach a leaf at some point. A leaf is a vertex that has no children. It does not matter which leaf he reaches. Note that it does not matter whether he will stay in the leaf. He just needs to move it. Additionally, note that it doesn't matter how many times he needs to move before reaching a leaf. तो ट्री दे दबाए ट्री. ये कौन सी ट्री है? इंटेस्टिकल्स 5. ठीक है, लेफ्ट जाएगा. R बन गई है. कंस्टेंट्स देखनी है मेरे को. 10 power 5. फिर ये राइट जाए. राइट तो है ही नहीं. ये क्या दे दिया इसने? राइट. चलो 3 leaves 3, 6, 7. ठीक है. To reach either 6 or 7, he needs to change 2 characters. However, if he change character on vertex 1 to R, he will reach the leaf. इसको R का left. तो आंसर इज 1. इसको चेंज करनी है तो गलत क्यों बता रहा है? Each of the vertices for each vertex, Anji tells Kexic index of both its left and its right child or tells him that they don't exist. अरे क्या करनी है इसको? ये राइट बताया तो इसको लेफ्ट करनी पड़ेगी, फिर इसको भी लेफ्ट करनी पड़ेगी. तो 2 चेंजेस है ना. अच्छा, इसको भी राइट जाने के लिए इसके लिए क्या करेंगे? रूट पे है वो. ठीक है, तो अगर रूट से DFS निकालने लगे पॉसिबल नहीं है. इसमें मुझे लग रहा है इसमें उल्टा चलनी पड़ेगी. और उल्टा बेस है कि मतलब हर रूट से, हर लीफ नोड से उल्टा चलो. इसको देखो लेफ्ट. ये जो है वो मैटर नहीं करता. इसका पेरेंट जो है, उसका पेरेंट में क्या है? लेफ्ट है. पर ये क्या है? राइट साइड में. अब ये सब कैसे पता करोगे यार? आज तो पता नहीं, बहुत नींद आ रही है. सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल हमेशा की तरह. क्या 2 3 0 0 1 1 0 0. ये क्या 0 0? What is this behavior? The first line of each text contains a single integer and the number of second line of each text contains a string as one integer. The ith of the next line contains 2 integers li and ra, indices of left and right child of vertex I. If li is 0, it means the vertex I doesn't have left child or right child. तो ठीक है. 1 के लिए होगा left child 2
और राइट चाइल्ड 3। मैं माउस से लिखा और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट यू अप, तो लेफ्ट जाएगा तो आंसर 0 में खत्म हो जाएगा ना, इसके लिए सही बात है। 3 2 अप लेफ्ट आर, अप जाएगा नहीं, अगर रूट पे ही आप है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, इस पे जो है वो मैटर नहीं करता, इसका ऊपर जो है वो मैटर करता है, राइट? ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, पेरेंट से लेफ्ट पे आता है, लेफ्ट पे आता है, लेफ्ट पे आता है, डीपी एक मेंटेन करता है, फिर डीपी ऑफ आई इंडिकेट्स, फिर डीपी ऑफ आई इंडिकेट्स यहाँ तक आने के लिए कितना चेंजेस करना पड़ा इस नोड पे आने के लिए, राइट? आंसर विल बी मिनिमम ऑफ दोज ऑल पेरेंट्स, मिनिमम ऑफ दोज ऑल जीरोस, क्या बोलते हैं इनको, जीरोस को, लीव्स। सिंपल ट्री डीपी लग रहा है मेरे को। बहुत दिन हो गया यार इस टाइप का सवाल करके। तो इसको कैसे सॉल्व करूँ मैं? सिंपल देखते हैं, स्टार्टिंग में किसने करता हूँ। चिकन बॉम्ब, अगर ये माइनस कर रहा है तो कुछ तो है। क्या ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट बन गया चिकन बॉम्ब? कब बन गया? लास्ट कॉन्टेस्ट में बना है, +1 1 2 लिया है एच बेस्ट राउंड में शायद। div1 प्लस div2 में हो गया क्या इसका? सही है, ये एच बेस्ट राउंड में इसका माइनस हो, बढ़िया है। 174 यूजर्स, 265 यूजर्स। एक प्रॉब्लम करने से 1300 हो जाएगा मेरा, पता नहीं, मैं मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम्स करता हूँ। इस लेवल की प्रॉब्लम मैंने ज़्यादा किया नहीं है, मैं अब इस लेवल का करता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा। अब 17 18 19 लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या पता अपर एक्सपर्ट बन जाऊंगे। इसने किया है 700 1800, बस 100% की फर्क है, कुछ कहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्रॉब्लम पे ध्यान देता है, तो इट्स नथिंग बट डीपी ऑन ट्रीज, ठीक है। तो देखो
नहीं यार, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ आज। मॉर्निंग में एक कॉन्टेस्ट था आईसीपी से। कितने लाइन है? 3 लाइन है। और नोट पे ही है क्या? GR of I। यार अब तो ये 3 बन गए तो 3 पे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। जैसे इस वाला केस हो गया, मैं 1 पे हूँ, लेफ्ट जाऊंगा और 1 का लेफ्ट में क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5। और 5 का राइट में क्या है? 5 का राइट में तो नथिंग है शायद। तो इसको और तो फिर मैं 5 पे आ गया। तो मैं क्या करूँ, इस पर अप्रोच कैसे लगाऊँ? मतलब टाइम कितना है? 2.5 पर सेकेंड पहुँचो। तो मतलब हर एक नोड पे जाके चेक करूँ, मतलब हर एक नोड पे जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर नोड यहाँ पे NS है तो इसका लेफ्ट में जाऊँगा तो कितना, क्या पॉसिबिलिटीज है? इसका राइट में जाऊँगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है? इसका ऊपर जाऊँगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है ये राइट दिया हो और ये ऊपर दिया हो। चलो अब सही कहा है ना, तो ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला केस है। डोंट यू थिंक दिस मेमोराइजेशन DP? तो मेरे को क्या करना है? कितने लोगों ने किया क्वेश्चन? 1000 लोगों ने, 1500 लोगों ने कर दी। हर एक नोड पे जाके मैं चेक करूंगा कि इसका यार मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है। तो फिर मैं 1 पे जाके चेक कर रहा हूँ। जैसे ये वाला कैसे, जैसे मैं पहले
L L R R R L U 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 1 पे गया तो दिया है लेफ्ट, 1 का लेफ्ट में क्या है 5 है, मैं 5 यहाँ पे आ गया और 5 पे दिया है राइट। और अगर 1 पे मैं अगर राइट करके देखता तो क्या बनता, अगर 1 पे मैं राइट जाके देखता तो 2 है। टू के पास जाके देखता मैं यहाँ पे लेफ्ट है। अच्छा यार ये डीपी है क्या, डीपी ऑफ टू स्टेट्स है क्या, मतलब मुझे इस पे रीच करने के लिए कितना चेंजेस करना पड़ेगा। वेक्टर ऑफ इंट जी आर ऑफ आई डॉट पुश बैक यू कॉमा भी डाल दो, मतलब उसका लेफ्ट और उसका राइट रिप्रेजेंट करता है ith नोड का। क्या दिक्कत है, फंक्शन कॉल टू पुश बैक, क्यों, वेक्टर ऑफ वेक्टर ही तो है। ठीक है पापा कर दे पुश बैक यू आई डॉट पुश बैक। ठीक है ये बन गई, मैं लूँगा टर्न की। अगर कोई नोड का लेफ्ट और राइट दोनों ही नहीं है तो यही है ना। तो देखो 2 1 2 3 3 प्लस 8 पर 0 प्लीज डॉट इंसर्ट एस। ठीक है तो हो गया, यहाँ पे टीपी करनी है डीपी डॉट सॉरी। क्या करूँ मैं, मेरे को याद नहीं हो रहा। बेस कैसे यही है, इफ यू मतलब जी आर राइट, जी आर ऑफ यू ऑफ 0 प्लस जी आर ऑफ यू ऑफ जो करंट नोड है उन दोनों का सम अगर 0 है मतलब लीफ नोड राइट। ये अगर 0 हुआ है तो dp of I is equal to min of dp of I comma return dp of I is equal to min of dp of I comma क्या रिटर्न करोगे, यहाँ पे अकाउंट पास करो आई 8 भाई। मतलब कोई नोड पे ऐसा हो कि मैं यहाँ से लेफ्ट आया फिर राइट आया, मतलब यहाँ से लेफ्ट से इस तरफ आया फिर राइट से वापस इस तरफ आया तो रूट पे मेरे को आने के लिए 2 तो लगेगा, ये भी लगेगा।
तो क्या कर रहे हैं? 10 dpf इज इक्वल टू काउंट थोड़ी करूँगा, वो लीफ नोड है। अगर वो लीफ नोड है तो क्या करेंगे? एक तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। भैया लीफ नोड तो रिटर्न करनी पड़ेगी, वो देखता है। dp of I is not equal to minus 1. Return dp of I. dp of I क्या रिटर्न करता है? Minimum changes to come at I. Character C is equal to character C is equal to S of U, जो करंट नोड का कैरेक्टर। if CS is equal to लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, मैं हर किसी का पेरेंट स्टोर करके 7 का पेरेंट है 4, तो 4 पे क्या है? राइट, इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी कर सकता हूँ ना, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। 7 का पेरेंट क्या है? 4, तो इसमें क्या है? राइट, तो इसको चेंज करनी है, आप में लेफ्ट हो गई। फिर 4 का पेरेंट क्या है? राइट, इसको चेंज करनी पड़ेगी लेफ्ट, और 1 आ गए तो 0 आंसर है इसे। हर एक नोड से उल्टा डीएफएस लगाना है मेरे को, बस इतना सिंपल लग रहा है। कोई डीपी नहीं लगानी भाई, मैं कट कर रहा हूँ ये चीज़, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये बना दी मैंने, इसका लेफ्ट में क्या राइट में क्या करके मेरे को लीव्स बन गया। लीव्स डाल ये बन गई है। ये बन गई तो क्या करनी है आप इस पर ऑटो अर्ली पे जाकर मैं, अब मेरे को पेरेंट भी स्टोर करनी है। एक पेरेंट ही होगा राइट? वेक्टर इनटू पेयर, अब बताओ पेरेंट ऑफ u इज इक्वल टू I, पेरेंट ऑफ 3 क्या होगा? 2 भी होगा। पेरेंट ऑफ 6 क्या होगा? पेरेंट ऑफ v इज इक्वल टू I। ऑब्वियसली ट्री है तो एक ही पेरेंट होगा, ऐसा मत थोड़ी है कि 4 और इसका पेरेंट एक ही होगा।
into dfs of into u. पहले मैं मार्क करूंगा उसका ऊपर into parent of u. अब मुझे चेक करना है, मेरे को 7 का पेरेंट आ गया 4, तो मेरे को चेक करना है 7 4 का लेफ्ट में है या नहीं है. इफ s of p minus 1 1 बेस्ट इंडेक्सिंग है, राइट. 4 यहाँ पे r है, 1 l है तो 0 l है ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 बेस्ट इंडेक्स है. इफ s of p minus 1 is equal to left and gr of p of 0 u मतलब सही है, तो सीधा पहुंच रहा हूँ dfs ऑफ पेरेंट. पेरेंट क्या है यहाँ पे, p दे दो भाई, dfs ऑफ p, dfs ऑफ p नहीं, या फिर ऐसा पेरेंट है राइट and gr of parent of 1 is equal to u है, मतलब राइट है, ऊपर राइट लिखा है और नोड भी राइट है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. then simply dfs of parent, समझे. else अप लिखा हो तो अब से तो नीचे तो क्या आएगा, else return 1 plus dfs of parent. बेस केस क्या है, if 1 if u is equal to 1 return 1 return 0. अगर 1 रिटर्न है तो 1 पे जाके भी तो चेक करनी है, मतलब चेक करता हूँ. Why? कहाँ पे है गलत, इनपुट लेने में है क्या, यू भी लिया है कहाँ से कहाँ तक, एन इनपुट तरीका स्ट्रिंग ले लिया है. दिक्कत क्या है, लीव्स डॉट इंसर्ट आई, तो ये गलत थोड़ी है. पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट्स को मैंने रिसर्च किया था नहीं किया. वन का पेरेंट 1 ही है. या देखते हैं भाई, इस बार जब भी दूंगा तो भाई वॉच पहन के दूंगा, स्मार्ट वॉच. हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है. हो गई पास है. फक, कौन सा टेस्ट करना है, रॉन्ग आंसर प्रोटेक्शन, मेरा टीएल ही तो नहीं है. टाइम लिमिट एक्सीड,
क्या ही होगा मतलब परफेक्ट बाइनरी ट्री में गलत हो सकती है। देखो एन लॉग एन की सॉल्यूशन है गाइस। अगर रूट ट्री ऐसा है तो लीफ क्या है यहाँ पे, एक ही लीफ तो है ना। एक ही लीफ पे मैं एक ही कॉल करूंगा, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक करेगा ऑफ एन है। अगर ऐसा बाइनरी ट्री है, अच्छा तो एन नोड्स में कितना होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नोड्स। 15 नोड्स में मैं बाई 2 होगा ना, 15 बाई 2 8 होगा। 8 एन बाई 2 लीफ नोड्स है और मेरे को जाना है इतने बार, मेरे को ऊपर जाना है तो एन बाई 2 लॉग एन ही, एन लॉग एन में ही हो जाएगा राइट। मेरे को नहीं लगता यार ये टीएल ही दे सकता है, क्योंकि एन लॉग एन अप्रोच है। और कौन सी केस बना देगा ये, मतलब इनको छोड़ के। ऐसा है तो भी यार 2 इंटू एन राइट। टीएल ही आ ही नहीं सकता यार, टीएल ही क्यों आ रही है। एन 3 इंटू 10 पावर 5 है। वैसे तो नहीं है, मैं लूप में फंस गया मैं। क्यों आ रही है टीएल भाई, टीएल तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब हर लीफ पे जाकर मैं चेक कर रहा हूँ, ऊपर डीएमएस लगा रहा हूँ, ऊपर मतलब पेरेंट के पास जाके चेक कर रहा हूँ मैं हर। हद हो गई भाई ये तो। एन के लिए कितना लीव्स हो सकता है, एन बाई टू, एन बाई टू लीव्स है ठीक है। और हाइट ऑफ ए ट्री क्या है, लॉग एन है। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, एन लॉग एन। टीएल क्यों आ रहा है। टू थाउजेंड 600 सबमिशंस, रॉन्ग वन प्री टेस्ट 2 आ रहा है इसका। क्यों। टाइम लिमिट एक्सीलेट सबका टीएल आ रही है। सबने ये सोचा होगा, तो ये गलत है। So should we go with DP on trees? को क्या लगता है, डी तो मुश्किल ही है, लाइक सी सॉल्व करना है, 1 आवर टाइम लगता है। मेरे को और थोड़ा पेपर से सोचना है, मैं थोड़ा लेट का सोचता हूँ।
हमेशा की तरह क्या होता पहुंचा जाए। मेरे को क्या लग रहा है, मैं इसको लेवल ट्रांसफर कर दूंगा। इस लेवल पे ये हो गई, मतलब जब लीफ आ जाएगा तो मैं चेक कर दूंगा कि इसका जो मिनिमम डिस्टेंस क्या है। पूरा ट्री का एक BFS ट्रैवर्सिंग में खत्म हो जाएगा क्या? अबे नहीं ना यार, तुमने एक बात नोटिस किया है, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब इसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पे ही हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट है तो हर नोट पे मेरे को ये भी है ना कि मान लो ऐसा भी एक नोट्स है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब हमें एट द लास्ट रीच तो होना ही रूट नोड ही है, लीफ नोड है। तो देखो अगर इसका जो है लेफ्ट में होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक मेरा दिमाग में क्या है, हमें हर पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। हर पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस केस। लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट पे चला गया, फिर राइट है, मैं ऐसा नहीं चेक करनी है ना। मतलब मेरे को अगर मैं एक करंट नोड पे हूँ तो मैं अगर लेफ्ट में जाऊँगा तो कितना ऑपरेशन लगेगा। पहला 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 क्या, एक तो मेरे को ये कंफर्म करना है, अगर ये नोड है इसका लेफ्ट में ये है और फिर राइट में ये है, फिर ये अप है तो ये राइट है, तो नथिंग राइट। इसको एक बार चेंज करूँगा मैं, लेफ्ट तो सीधा लेफ्ट चले जाऊँगा, तो ये सब फालतू का बकवास है। हर पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा मैं, ये तुम मान के ही चलो। क्या लेवल ऑर्डर कर दूँ? मतलब मेरे को ज़्यादा BFS दिमाग पे आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है मेरे को भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि BFS से हो जाएगा बिना DP। मतलब कैसे कैसे कैसे, एक नोड पे हूँ मैं, इसके लेफ्ट और राइट दोनों पुश कर दी मैंने और चेक किया कि इसके लिए क्या है, इसके लिए आंसर क्या है। लेफ्ट में तो 0 ऑपरेशन करनी पड़ेगी इस नोड रीच होने के लिए। ये क्या है, ये तो राइट पे है पर इस नोड पे लेफ्ट है ना, तो एक ऑपरेशन हो गया इस नोड पे रीच होने के लिए, ठीक है। तो फिर वापस हम इससे क्या करेंगे, वापस इससे हम लेफ्ट में जाएंगे, तो क्या इसमें दिया है राइट, तो यहाँ के आने के लिए 2 ऑपरेशन हो गया। या सिंपल BFS है यार, छोड़ो देखते हैं। अच्छा बेटा, मेरे को एक और सबमिट कर देता हूँ, ये खुल रही है। ये अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है, पता नहीं क्यों TL ले आ गया, पर इस पूरा कोड में डालने के अच्छा मैं एक लिख देता हूँ। सी नेक्स्ट, ठीक है।
GR of I dot pushback U, GR of I dot pushback V. If left check करना है, if left exists, if GR of top of 0 left is not equal to 0 and अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो एस ऑफ टॉप राइट टॉप -1 ये भी है, इसका लेफ्ट में कोई एलिमेंट है और इसका टॉप पे जो है वो लेफ्ट है, तो सिंपली क्यू डॉट पुश इसका जो लेफ्ट है वो GR ऑफ टॉप ऑफ 0 राइट, एल्स क्या करनी है, dp of top अरे काम करता हूँ, int left is equal to GR of top of 0 int right is equal to GR of top of 1 but left not equal to 0. लेफ्ट हो गया, ठीक है, अगर नहीं तो dp ऑफ लेफ्ट रीच करने का वो लेफ्ट इक्वल टू 1 प्लस dp ऑफ पेरेंट, पेरेंट है टॉप, जो टॉप है भाई पेरेंट है ना, नोड मतलब क्यू डॉट पुश लेफ्ट, if right is better than 0 सेम लिखेंगे, एस ऑफ टॉप ये हो गई राइट। आपका कुछ रोल है क्या, आपका कुछ रोल भी है या नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। right is equal to 1 plus dp of top, left plus right is equal to 0, तो ये रूट है, आंसर इसका लिखूंगा आंसर कॉमा dp ऑफ टॉप
क्यों 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 हुआ ऐसे मेरे साथ? अरे यार सबका ही हो गया क्या? बॉन्ग ने कितना सॉन्ग सबसे मारी? 2। जल्दी करनी पड़ेगी मेरे को। क्या दिक्कत है? क्यों है लेफ्ट राइट यू? -1 आ क्यों रहा है? -1 आ भी क्यों रहा है? आंसर को मैंने इनिशियलाइज किया एंड से। डीपी ऑफ 1 कर दिया मैंने 0। अब क्या दिक्कत है इसको? अच्छा यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा डीपी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 1 डीपी ऑफ टॉप। कहाँ पे? 50। फ्रंट में मेरा आ भी क्यों रहा है यार? क्या कर दिया मैंने इसके साथ? रन टाइम मेरा क्यों आ रही है? ये तो आना ही नहीं चाहिए। अरे यार ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना यार, मतलब देखता हूँ यहाँ पे क्या था। यहाँ पे देखो मैं लेफ्ट पुश कर रहा हूँ यार। अगर वो लेफ्ट है तो लेफ्ट गया, चेक करनी है मेरे को 1 मिनट। अगर वो लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट पुश किया, लेफ्ट और लेफ्ट हाथ तो एक बढ़ा दिया, फिर इसको लेफ्ट कर दिया। अगर नहीं वो पहले से ही राइट है तो राइट पुश कर दिया, मैंने राइट एक बढ़ा दिया। क्या दिक्कत है? सबमिट। हो जाएगी सर। फालतू में एक रॉन्ग सबमिशन खाई है मैंने, 50 पॉइंट्स माइनस। यार अगर 50 पॉइंट्स आता तो क्या होता? 2205। इट्स लाइक ठीक है, मतलब पोएटिक कोडर।
9:56 11 मिनट में क्या? तो क्या लगता है डी बन जाएगा? डी तो होगा ही नहीं, मुश्किल है शायद। क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं, स्मॉल डी सी डी। मतलब ये तो देखने दो कौन से कोडर्स ने किया है इसको। ऑफिशियल रेटेड वाले ये कर लिए क्या? ये सब सी जो जल्दी किया है, ये जो सब डीप है रॉन्ग मार रहे हैं प्यूपिल्स एक्सपर्ट्स। डी का सही सबमिशन और कोई है ही नहीं क्या? 1100 पॉइंट आया। कोई मिल क्यों ना रहा है? यहाँ पे आ गया ना सी एम में, ये तो साफ में दिख रहा है। ये कौन स्पेशलिस्ट कर दिया? मास्टर है ये तो, और ये तो अपर एक्सपर्ट है भाई। नहीं होगा हमसे, हिम्मत छोड़ दिया मैंने। दो रहे तो अब एडिटोरियल सॉल्व करते हैं। एडिटोरियल बना रहे हैं, सॉल्व नहीं, सॉरी, सब एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। पहले 3 प्रॉब्लम का राइट। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ता है, कवर इन वाटर। ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता, सीधा कुछ अच्छा नाम न रख देते हैं, या ए बी, जैसे एल एस बॉब का ए बी सी आर प्लेइंग ऑपरेशन, ये बिल्कुल ही अलग नाम बना के क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन पढ़ने का मज़ा खराब हो जाती है इससे। ठीक है, कैंसिल है ये तो गड़बड़ है। ठीक है, रेड से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का मतलब ये था, 4 कंटेनर्स, मतलब n कंटेनर्स दे दी तुम्हें, n कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो एम्प्टी कंटेनर्स है, एक तो ब्लॉक्ड कंटेनर्स। तब ब्लॉक्ड में तुम क्या कर सकते हो, नो वाटर, पानी तुम डाल ही नहीं सकते इसमें। एम्प्टी में क्या कर सकते हो, पानी डाल सकते हो। तुम 2 ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 2 तरह के ऑपरेशन कर सकता हूँ। एक तो एक क्या, फिल वाटर, एक क्या है, एक कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें वाटर फिल कर दो। दूसरी क्या है, कोई भी कंटेनर ले लो, उसका पानी जो है उसका साइड में, मतलब उसका पानी जो है वो किसी और में भी एम्प्टी वाले में डाल सकते हो, चेंज वाटर। ठीक है, फ्रॉम कंटेनर, मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब मान लो ये फील्ड है, ये ब्लॉक्ड है, ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, 2 एम्प्टी कंटेनर्स है। तो पहले क्या करेंगे हम, 1 नंबर ऑपरेशन यूज़ करके इस पे पानी डाल देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप के ऑपरेशन यूज़ करके ये इसका जो पानी जो है वो वापस इसमें शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सिंपली। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एम्प्टी वापस। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फिर तब ये बन जाएगा एम्प्टी, ऐसे वाटर जो है वो उस पर आ गया। तो एक है ये। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन में ये दिया है कि दूसरे ऑपरेशन जो है वो कितने बार भी कर सकते हो तुम। ठीक है, दूसरे ऑपरेशन जो है कितने बार भी कर सकते हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ 1 ऑपरेशंस बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ 1 ऑपरेशंस बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक और गिवन चीज़ गिवन है, अगर मान लो 3 कंटेनर्स है, इसे 3 एम्प्टी कंटेनर्स है, तो अगर इसमें पानी फिल्ड है और इसमें भी पानी फिल्ड है, तो अपने आप इसमें पानी आ जाएगा। तो इस अगर मान लो इसमें एक ऑपरेशन करके तुमने पानी डाल दी और इसमें एक ऑपरेशन करके तुम इसमें पानी डाल दी, तो फिर इसमें जो है तुम्हें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दोनों ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना 2 ऑपरेशन के
अपने आप पानी भर जाएगा इसमें, ये भी फिल हो जाएगा। तो समझ गए क्या बोल रहा हूँ? तो कैच यही है, मान लो 3 कंटेनर्स है, तो इस पे एक ऑपरेशन करके इसमें फिल कर दो, इस पे एक ऑपरेशन इसमें फिल कर दो, पानी इसमें अपने आप फिल हो जाएगा। तो कितने ऑपरेशन चाहिए? 2 ऑपरेशन चाहिए ना हमें, 2 बार पानी फिल करने पड़ेगा 2 अलग अलग कंटेनर्स में, तो बीच वाले फिल हो जाएगा। अगर मान लो 4 कंटेनर्स है तो क्या होगा? तो इसमें एक बार पानी डाल दो, ठीक है, और इसमें पानी डाल दो, इससे क्या हो जाएगा? ये फिल हो जाएगा। तो 2 ऑपरेशन किया ना अभी तक, एक 1 2 3 4। तो तुमने क्या किया? 1 पे पानी डाला, फिर 3 पे पानी डाला, तो अपने आप क्या हुआ? पानी 2 में आ गया, ठीक है। तो फिर ये जो 2 का पानी जो है वो ट्रांसफर करो इस पे 4 पे। फिर क्या किया तुमने? ये चीज ध्यान से रखना, जो बीच वाला जो है वो क्या है, मतलब तुम, वो तो पानी बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इसका एडजेसेंट 2 में है। समझा क्या बोल रहा हूँ? इसका पानी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो 4 फिल हो गया। तो फिर वापस देखो, यहाँ पे भी फुल है, यहाँ पे भी फुल है, और बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो ये भी अपने आप फुल हो जाएगा। तो कितने ऑपरेशन किया? 2 ऑपरेशन में तुमने पूरी 4 भर दी। तो मेन कैच यही है ना, मतलब वो मैजिक है कुछ, ठीक है। अगर 2 एडजेसेंट वाले में पानी पहले से है तो बीच में अपने आप पानी आता ही जाएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा कैसे आएगा। तो इससे क्या करेंगे, जो बीच से पानी आ रहा है तो उस बीच वाले जो जिससे पानी आ रहा है उसको निकाल के हम बाकी हर जगह डालेंगे ना, जहाँ जहाँ पानी रिक्वायर्ड है। ये चीज समझ में आया? मान लो कुछ ऐसा ब्लॉक भी है, ये एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, फिर बीच में कहीं ये ब्लॉक आ गया, फिर ये एम्प्टी आ गया। तो क्या करोगे यहाँ पे? तो इस पे पानी फिल करोगे, एक ऑपरेशन करोगे, इस पे पानी फिल करोगे, तो अपने आप ये फिल हो जाएगा, है ना। तो इसका जो पानी है वो इस पे ट्रांसफर कर दो, फिर वापस ये वापस फिल हो जाएगा। तो क्या 2 ऑपरेशन में तुमने पूरा ऐसा कर दिया। ये बीच में ब्लॉक्ड भी है तो फर्क नहीं पड़ सकता, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफर तुम कर सकते हो कैसे भी। तो इसका मेन इंट्यूशन यही है कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में, मतलब अगर 3 एडजेसेंट ब्लॉक्स ऐसा है, 3 एडजेसेंट एम्प्टी कंटेनर्स है, तो आंसर 2 ही बनेगा। भले ही इसका बाद 100 कंटेनर्स हो या 100 ब्लॉक, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमें वो वाली मैजिक स्पॉट मिल गई ना जहाँ पे अनलिमिटेड पानी आएगा, जहाँ पे तुम अनलिमिटेड पानी मिलेगा तुम्हें, क्योंकि 2 ऑपरेशन करने पे तुम्हें अनलिमिटेड पानी मिल जाएगा। तो आंसर 2 ही है। अगर नहीं है मतलब क्या, अगर देख लो ये वाली केस बन सकती है, ये एक हो गई, एक मेन केस है। दूसरी केस जो है वो ऐसा है, फिर ब्लॉक्ड है, फिर ऐसा है, ये ब्लॉक्ड है, फिर एक ऐसा है। इसमें क्या करोगे? इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम मैजिकल स्पॉट ढूंढ ही नहीं पाओगे। यही है ना मतलब। इसमें देखो, इसमें फिल करोगे इसमें, तो इसमें भी फिल करना पड़ेगा ऐसे, फिर ये उठा के तुम ट्रांसफर कर भी दिया तो ये मैजिकल स्पॉट नहीं है बनने के लिए, वापस फिल करना ही पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें क्या है, सब में फिल करना ही पड़ेगा। तो ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी। तो अगर एम्प्टी सेल्स 2 ही है तो 2 में ही करना पड़ेगा, अगर एम्प्टी सेल 1 ही है तो 1 में भरना पड़ेगा। तो इसमें आंसर आएगा 5, ठीक है। इसका लाइव रिकॉर्डिंग में मैं सब कुछ बताया था, मतलब थोड़ा डिटेली एक्सप्लेन किया था मैंने, कैसे इसको इंट्यूशन को ला रहा हूँ वो भी चीज़ बताया मैंने, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें मैं सोच के वो सब किसी से किया है लाइव में, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो भी तुम एक बार देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इनपुट में स्ट्रिंग ले लिया। क्वेश्चन में यह है कि, और कुछ यहाँ तक आए तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मतलब डॉट है तो एम्प्टी है, हैश है तो ब्लॉक्ड है। मैंने क्या किया, जो भी ब्लॉक्ड है उन सबको स्किप कर दी पहले चीज़। उसके बाद जो भी एम्प्टी कंटेनर्स है उन सबको मैंने गिना था, काउंट 0 कर दिया, और जो भी एम्प्टी कंटेनर्स है उन सबको मैंने काउंट कर ली, ठीक है। अगर काउंट 1 है तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 ही होगा। अगर काउंट 1 नहीं है, काउंट 1 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या है? 2 ही है ना। अगर काउंट मान लो 2 है, अगर काउंट मान लो 2 है तो आंसर 2 ही है ना। अगर काउंट मान लो 3 है, 3 कंटेनर्स है, तो भी आंसर 2 ही में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ फिल करोगे, यहाँ फिल करोगे तो अपने आप फिल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर काउंट ग्रेटर देन 2 है, अगर काउंट जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो मैंने चेक ट्रू कर दी, क्योंकि वो है कि मैजिकल स्पॉट फाइंड कर लिया हमने ना। हमने क्या किया, मैजिकल स्पॉट जो है फाइंड कर लिया जहाँ पे हमें अनलिमिटेड पानी मिलेगा। तो सिंपली वहाँ पे चेक मैंने ट्रू कर दिया और फिर कर दी मैंने पहले। तो फिर मैंने क्या किया, अगर आंसर चेक है, मतलब अगर कहीं पे हमें मैजिकल स्पॉट मिल गई है तो आंसर ट्रू प्रिंट कर दिया, वरना क्या किया मैंने, आंसर प्रिंट कर दी, यही चीज़। और ये क्वेश्चन है 1000 का मान सकते हो, क्योंकि जो सोचने वाली बात है वो इंट्यूशन हुआ वो वाली, वो थोड़ा मुश्किल है। अब बी सॉल्व करते हैं। बी में क्या है, हाँ अब बी में देखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा तुम्हें। बी में ऐसा है
एक बोर्ड है, उस पर उसने नंबर दे दी, मतलब 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, इनका नंबर दे दी, इनका काउंट दे दी, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ टूस, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ वंस, टूस, थ्रीज, ठीक है, इनका काउंट दे दी इसने क्वेश्चन में। हमें एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दो अलग अलग नंबर्स को, मान लो एक 2 और एक 3 उठा ली, या एक 1 और एक 3, कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स को चूज करनी है, उन दोनों को हटा के जो इनसे अलग वाले नंबर है उनको ऐड करनी है। जैसे मान लो 1 2 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर है बोर्ड पे, ये नंबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन में एक 1 और ये 3, ये दोनों सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर इन दोनों को मैं अरेंज कर दूंगा, फिर इन दोनों से जो अलग है वो क्या है, 1 और 3 से अलग क्या है, 2 है ना, तो 2 को ऐड कर दूंगा, तो अब हमारे बोर्ड में बन जाएगा 2 और 2, ठीक है। समझ गया क्या बोल रहा हूँ, दो अलग डिफरेंट नंबर्स को चूज करनी है, उनको अरेंज करना है, और इन दोनों से जो डिफरेंट है उनको ऐड करनी है। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ जाएगा, वहां पे भी एक्सप्लेन किया है ये वाली चीज। हाँ, तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, हमें बताना है कि जो लास्ट का है, कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं हम, ये वाली थी है। हमें लास्ट में बताना है कि जो इसके बाद जो बचेगा, लास्ट का जो एरे है, लास्ट का जो नंबर है, वो सारे क्या यूनिक हो सकते हैं क्या, मतलब हमें 3 नंबर्स आउटपुट देना है, ठीक है। पहले क्या दोगे, मतलब जो लास्ट का एरे जो बचेगा वो सारे वंस हो सकते हैं क्या, यस और नो देनी है, 1 है तो यस, 0 है तो नो, ठीक है। और फिर लास्ट का जो बचेगा वो ऐसे सारे टूस बना सकते हैं क्या एरे का, 1 है तो यस वरना 0। अगर लास्ट का जो सारे थ्रीज बना दिया तो यस, या तो फिर 0, ऐसा ऐसा बताना है हमें कि क्या सारे 1 बन सकते हैं, या सारे 2 बन सकते हैं, या सारे 3 बन सकते हैं, ये वाली मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तुम सोचो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो वापस वही वाली चीज़ है, तुम अगर लाइव रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने वहाँ पे लाइन टू लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया लॉजिक, अब तो क्या मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा सीधा यहाँ पे, पर लॉजिक लाया कैसे वो लाइव रिकॉर्डिंग पे होगा, तुम एक बार जाके चेक कर लेना, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्किप करके देख लो, 2x में भी देख लो, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, मेन चीज़ मैंने यहाँ पे जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल सॉल्व कर तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पता गया, मान लो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगर मुझे सारे वंस बनानी है तो क्या करूँगा मैं, इस 2 और 3 को हटा दूंगा, एक 1 ऐड कर दूंगा, और इस 2 और 3 को हटा दूंगा, एक 1 ऐड कर दूंगा, तो बन गए सारे वंस, ठीक है। अगर मान लो 1 1 2 2 2 है, 3 3 है, तो क्या होगा, इस 2 और इस 3 को हटाऊंगा, एक 1 ऐड कर दूंगा, इस 2 और इस वाले 3 को हटा दूंगा, एक और 1 ऐड कर दूंगा, अब क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया, एक 2 बच गई बस। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को और इस 2 को कर भी दूंगा, तो क्या 3 ऐड हो जाएगा, तो अब ये 4 हो जाएगा। अब इस 3 और इस 1 को हटा दिया तो क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो वापस वही वाली चीज है ना, 2 1 फिर एक 2 आ गया, फिर इस 2 इस 1 का हटा लो, 3 हो जाएगा, इस 1 और इस 3 को हटा के तुम 2 बना सकते हो, पर 1 तो कभी बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं बना सकते हैं, वो वाली चीज देखो, ठीक है, वो बताता हूँ मैं क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि देखो, क्योंकि अगर मान लो 1 1 है, 3 2 है, फिर यहाँ पे 2 3 है, क्योंकि देखो तुमने जब एक ऑपरेशन कर दिया इन दोनों को निकालने में, तो जो वंस का अलावा कितने एलिमेंट्स बचे हैं, वंस को छोड़ के जितने नंबर बचे हैं, एक ही नंबर बचा है, 2 है, एक ही नंबर बचा है ना, ऑड नंबर बचा है, तो ऑड नंबर से क्या होगा, इसको एक और 1 से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर अलग नंबर आ जाएगा वापस, तो ये डेडलॉक हो जाएगा। तो हमें सिंपल सी लॉजिक यही है, अगर मान लो इसके साथ मुझे एक और 2 या एक और 3 होता, तो मैं इस 2 और इस 3 का ऑपरेशन बना के एक और 1 ऐड कर देता यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 3 इक्वल हो, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 1 है, फिर मैंने यहाँ पे ले ली 5 2, फिर यहाँ पे ले ली मैंने 3 3, या एक 3 भी ले लो, देखो 5 2 से फिर एक 3 है, 5 2 से 3 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला ऑपरेशन 2 और 3 पे डाल देंगे, एक 1 आ जाएगा, 1 को ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले 1 को और इस वाले 2 को मैं काट दूंगा, फिर 3 ऐड करूंगा यहाँ पे,
तो फिर वापस 3 और 2 को कट करूंगा, फिर वापस 1 ऐड करूंगा, तो अब मेरा एरे क्या बना 1 1 1 2 2, राइट। अब इस बार क्या है, इस बार जो वंस को छोड़ के जो अलग नंबर्स बचे हैं वो कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, राइट। पिछले वाले केस में तो एक ही 2 था, इसमें 2 2 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो एक 1 और एक 2 को काट दिया हमने, तो 3 बन गया, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो इस 3 और इस 2 को काट दी तो 1 बन गया, तो अरे बन गए 3 वंस इक्वल, राइट। ये पास है हमारा, सब वंस बन गए। तो यहाँ पे लॉजिक यही है, अगर इवन नंबर्स है तो पेयर में हमेशा बना सकते हैं। मतलब अगर मुझे सारे वंस बनाना है, सारे वंस अचीव करना है, तो नंबर ऑफ टूस प्लस नंबर ऑफ थ्रीज का काउंट ये जो है वो इवन होना चाहिए, तो बनेगा, वरना फॉल्स, ठीक है। अगर सारे टूस बनाना है मेरे को, सिमिलरली अगर सारे टूस बनाना है तो नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ थ्रीज का काउंट इवन चाहिए मेरे को। अगर सारे थ्रीज बनाना है, सिमिलरली यही है, नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ टूस का काउंट इवन होना चाहिए, वरना फॉल्स बना ही ना सकते हैं। ये वाली केस है, इसका कोड देख लेते हैं जल्दी। देखो यही बनाई, सिंपल सी कोड है ये, तो थोड़ा सोचने वाली बात है ये भी, मैं तो मानता हूँ 1000 का रेटिंग का है, 1000 या 1100 बोल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर बी और सी ऑड है तो मैंने 0 कर दी, वरना इवन, वरना 1, वापस ये सी ऑड है तो 1 0 0। ये तो कुछ है ही नहीं कोड, बहुत सिंपल। वो तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरे को लग गया इसको 10 मिनट तो लगा ही है, 13 मिनट शायद, और एग्जाम्पल सॉल्व करने में लग गया। सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंजिस एंड बाइनरी ट्री। ये वाली क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब 1500 या 1600 मान सकते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ बाइनरी ट्री गिवन है, और हर एक वर्टेक्स पे क्या है, तीन ऑपरेशन है, लेफ्ट राइट अप। पता ही है, लेफ्ट है तो लेफ्ट जा सकता है, राइट है तो राइट जा सकता है, अप है तो अप जा सकता है। तो हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, ये जो है वो राइट है, ठीक है। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट। देखो हर नोड पे ये मिल गया हमें, और हमें क्या करना है, हमें रूट से स्टार्ट करना है, हमें रूट से स्टार्ट करना है। और जो लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जाना है, राइट है तो राइट पे जाना है, अप है तो ऊपर जाना है, आपका कोई रोल नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ पे अगर अप लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, रूट से मुझे कहाँ जाना है, मुझे लीफ नोड पे जाना है। रूट से जो लीफ नोड है, ये लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, तो ये तीनों लीव्स हैं। रूट से मुझे लीफ नोड पे जाना है, और क्या करना है, पाथ तो पता ही है हमें, लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जाना है, राइट है तो राइट पे जाना है। मेन चीज़ क्या है, हमें इस पाथ को हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें अप पे, लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे आ गए, यहाँ पे अप पे तो वापस यहाँ थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे अगर इस अप को हमने चेंज कर दी लेफ्ट पे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये वाला लीफ नोड मिल गया ना, तो हमें एक चेंज करने पे आंसर मिल गया। यस, लीफ नोड पे आ गए हम एक चेंज करने पे, तो आंसर यही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस बतानी है। आंसर क्या बताना है हमने, मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस बतानी है टू रीच लीफ, ठीक है। इसके लिए अप्रोचेस मैंने सोचने लग गया। पहले अप्रोच तो मैंने ये सोच लिया कि जो भी लीफ नोड्स है, लीफ नोड से मैं ऊपर जाता हूँ। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। तो इससे लेफ्ट क्या हो गया, ये 7। तो इससे लेफ्ट, इससे अप, इससे लेफ्ट, इससे राइट, इससे लेफ्ट, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक। तो क्या करेंगे, मैं तो ये सोचा था पहले, हाँ उल्टा चालू करते हैं, लीफ से रूट जाते हैं। हर लीफ पे जाके मैं चेक करता हूँ इसका ऊपर क्या है। इस 5 के लिए देखो, इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट को मैंने स्टोर कर ली। फिर चेक किया 5 का पेरेंट जो है वो क्या है, 4 है।
4 का जो पाथ क्या है, 4 का पाथ है लेफ्ट, मतलब इस साइड वाला, गलत है ना, राइट होनी चाहिए तभी ये 5 के पास आऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, इसको काउंट मान लिया, एक काउंट मान लिया मैंने, इसका पाथ होनी चाहिए राइट। अब 4 के पास देख लिया मैंने, 4 का पेरेंट क्या है 2, ठीक है, इस 2 का पाथ क्या है राइट गिवन है, पर होना तो 4 तो लेफ्ट पे है ना, तो इसलिए यहाँ पे आने के लिए मैंने 2 बना दी, +1 कर दी, फिर 2 हो गया। फिर इस 2 का पेरेंट कौन है 1, 1 पे रीच हो गया तो आंसर वापस चेक किया, लेफ्ट है तो लेफ्ट सही है, तो 1 पे रीच होने के लिए आंसर लगी हमारे 2। तो ऐसे में क्या किया, हर लीफ पे जाके उनका पेरेंट से रीच होते होते मैं 1 तक पहुंचा था। ये करने के लिए मेरे को नहीं लगता, ये मेरे को दे दी TLE ऑन टेस्ट केस 6, इसकी वजह से मैंने 2 रॉन्ग सबमिशन आ गए। ये मुझे नहीं लगता कि ये TLE देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स होगा, एक तो ये वाली बाइनरी ट्री जब टाइम के सिंगल है तो ये वाली स्ट्राइट चेन वाली बाइनरी ट्री हो गई, और एक ये वाली बाइनरी ट्री हो गई, मान लो। मैक्स टू मैक्स कितने लीफ नोड्स होंगे, n लीफ नोड्स होगा, n लीफ नोड्स ही होगा ना। n लीफ नोड्स के लिए मैंने क्या किया, रूट तक मैंने पाथ किया, रूट मतलब हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, राइट, क्या है n log n होना चाहिए, n 10⁵ ही है, ये तो पास हो जाना चाहिए, पर ये मेरे को TLE दे दी, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, ठीक है। अब तो फिर मैंने क्या सोचा, दूसरे अप्रोच सोचा, तो उल्टा चालू करना है क्यों है, मैं सोचा हूँ भाई सीधा से ही चालू कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधा चालू कर दी मैंने, फिर देखो, तो फिर मैंने क्या किया इस बार, मैंने BFS लगा दी, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या DFS जो भी लगाने लगा दो। मैंने क्या किया, हर नोड पे जाके चेक कर दी मैंने। मैं अगर मान लो मैं यहाँ पे रूट पे हूँ, तो रूट पे तो गिवन है लेफ्ट साइड जाना है, रूट पे गिवन है लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है, पर क्या पता राइट पे मेरे को कम में मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अगर ये लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं लेफ्ट पे गया, और यहाँ पे लेफ्ट है तो ठीक है, वरना क्या किया, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन बढ़ा दी, राइट पे भी गया, मैं यहाँ पे क्यू में मैं BF इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैंने हर नोड पे गया, यहाँ 3P पुश किया था, फिर मैं क्या किया, यहाँ पे तो लेफ्ट है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, एक ऑपरेशन बढ़ा दी, चेंज कर दी, फिर 3 पुश कर दिया। इस 3 के लिए मतलब वापस लेफ्ट पे है, तो 6 के लिए 0 कुछ ऐड नहीं किया, 7 के लिए क्या किया, अप है ना ये, देखो यार सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मेरे को, मैंने क्या किया, सेकंड अप्रोच के लिए लेवल वाइज करता गया मैं, ट्रैवर्सल पूरा ट्री पे ट्रैवर्सल किया, और एक मैंने एरे मेंटेन कर ली, DP एरे, DP है ही नहीं, मतलब कुछ नॉर्मल एरे मेंटेन कर ली, डिस्टेंस एरे मान, चेंजेस एरे, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें चेंज ऑफ आई ये रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को आई तक आने के लिए कितने नंबर ऑफ चेंजेस चाहिए, सिंपल है, नंबर ऑफ चेंजेस टू रीच ठीक है, तो नंबर ऑफ चेंजेस टू रीच है, तो मैंने क्या किया, अब देखो, अब ऑब्वियसली है 1 के लिए क्या बनेगा, 1 के लिए तो 0 ही बनेगा, राइट, 1 को रीच करने के लिए 0 ही चाहिए ऑब्वियसली, बेस कैसे। तो देखो जब मैं 1 पे गया तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों पे गया, इसका लेफ्ट क्या है 2, इसका राइट क्या है 3, तो मैंने चेक किया कि 1 पे जो पाथ है वो क्या है, 1 पे जो पाथ है वो गिवन है लेफ्ट, तो लेफ्ट जाने के लिए मेरे को कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्यू में 2 पुश कर दी, 2 के लिए भी कोई जरूरत नहीं है 0, और मैं क्यू पे राइट भी पुश किया था, राइट कुछ पुश करने के बाद मैंने चेक किया ना कि ऊपर वाली पाथ जो है वो अलग है, लेफ्ट तो गिवन है, पर मुझे तो राइट जाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट बढ़ा दी 1, जो इसके पेरेंट है उसका काउंट बढ़ा दी 1, और क्यू में ये 3 पुश कर दी। अब वापस जब 2 पे आएंगे तो 2 पे वापस लेफ्ट में जाऊंगा मैं, 4 आएगा, पर 2 पर जो पाथ है वो क्या है, वो राइट है, राइट की साइड गिवन है, वो तो गलत है ना, अब मुझे वापस इस पर चेंज करना पड़ेगा, तो वापस 4 पे करनी पड़ेगी मेरे को एक चेंज, ठीक है। अब वापस 3 का जो है मैं 6 पुश कर दी, 6 का जो गिवन है, 3 का जो पाथ है वो क्या है, आप पे, ये तो उल्टा है 6 से, ये तो उल्टा है ना 6 से, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 पे वापस 6 पे आने के लिए एक और काउंट बढ़ा दी 2, और 7 रीच करने के लिए काउंट बढ़ा दी 2, इसके लिए भी उल्टा है ना, अब दिया है, अब तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ एक एक पे पास जगह चेक कर लिया, जब लीफ आ गया
लीफ आ गया तो मैंने क्या किया, काउंट कर दी, मतलब वहां पे मैंने आंसर कैलकुलेट कर ली, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, वो कर ली मैंने, डिसाइड कर लिया आंसर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे यही है, क्वेश्चन का जो इनपुट फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है चलता हूँ। इनपुट फॉर्मेट पहला गिवन है इसने स्ट्रिंग लेफ्ट राइट यू, आप लेफ्ट राइट यू करके कुछ स्ट्रिंग गिवन है। इसके बाद जो नंबर ऑफ वेट्सेस है उतना इसने क्या किया, लेफ्ट और राइट पेज दिया है, पहला ही आ रहा है L1 R1 L2 R2, ये करते गया LN RN। लेफ्ट राइट का जो ith नोड का लेफ्ट और राइट जो है वो गया है, ये सब क्या है, लेफ्ट एंड राइट और ith नोड। तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है यार, देखो मैंने बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, पहले सोल्यूशन। ठीक है, पहला चीज़ देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इनपुट ले लिया u और v। देखो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, फिर ऐसा ही मतलब मेरे GR का ग्राफ में, देखो मेरा GR का ग्राफ में ना ऐसा है, मतलब GR ऑफ ith में क्या होगा, पहले होगा लेफ्ट, इसके बाद होगा राइट। सो मेरे को लेफ्ट कैसे मिलेगा, ith नोड का लेफ्ट मेरे को मिलेगा GR ऑफ I ऑफ 0th पोजिशन में जो है, ith नोड का राइट कैसे मिलेगा, GR ऑफ I ऑफ 1। ठीक है, ये चीज़ मिलेगा मेरे को लेफ्ट और राइट। ठीक है, मैंने क्या किया, नॉर्मल से BFS ले लिया, उसमें 1 पुश कर दी, DP मैंने इनिशियलाइज कर दी, मतलब DP मतलब मेरा चेंजेस वाला रहा है, और DP ऑफ 1 का जो है मैंने 0 बना दी, और BFS नॉर्मल पता ही है तुम्हें, ये पहले दो चीज़ तो कॉमन ही है। फिर टॉप एलिमेंट ले ली और लेफ्ट और राइट ले लिया, जो ith का लेफ्ट है और ith का राइट, टॉप का जो राइट एलिमेंट, दोनों ले ली मैंने। लेफ्ट और राइट दोनों में पुश कर दिया, अगर लेफ्ट में लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है करंट एलिमेंट का, तो मैंने क्यू पे वो पुश कर दी लेफ्ट, और इसका पेरेंट का पाथ L है तो सही पाथ है, लेफ्ट पुश कर दी, वरना क्या किया मैंने, चेंज करना पड़ेगा, एक काउंट बढ़ा दी मैंने, लेफ्ट का काउंट बढ़ा दी, और पाथ में लेफ्ट वाली नोड को पुश कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट पुश कर दी मैंने, अगर सेम है तो कुछ नहीं किया, अगर नॉट अलग है पाथ जो है तो मैंने राइट बढ़ा दी। और जब नोड लीफ नोड है तो लेफ्ट और राइट दोनों 0 0 गिवन है इनपुट में, तो दोनों की सम 0 है, तो इसका मतलब है लीफ नोड है, तो आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर को हम डिवाइड करते हैं। मैंने एक रॉन्ग सब्मिशन मैंने यहाँ का आ गया, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब कॉपी पेस्ट करते वक्त गलत कर दी होगी, मतलब मैं यहाँ पे ना, मैं देख सकते हो तुम लाइव स्ट्रीम जाके, मैंने यहाँ पे क्यू डॉट पुशबैक लेफ्ट कर रहा हूँ, बल्कि मेरे को राइट करनी चाहिए। ये छोटी सी गलती की वजह से ना 50 पॉइंट कम आ गया मेरे को। अगर 50 पॉइंट मेरे को ये आते हैं तो मैं कम से कम 300 रैंक ऊपर जाता, 300 टू 500 रैंक ऊपर जाता, क्योंकि इसमें ज़्यादा सबमिशंस थे, लोग रॉन्ग आंसर्स आ रहे थे, तो अच्छा मौका था। और सी डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि डी थोड़ा टफ था। तो कॉन्टेस्ट का मेन गलती मेरा यही है कि इसमें रॉन्ग सबमिशन मार दिया, और ये भी में थोड़ा स्लो सबमिट में, ये में तो ज़्यादा टाइम लगा दी मैंने। मेरे दोस्तों बाकी लोग ने किया था ये क्वेश्चन 5 5 मिनट में, ये गलती थी मेरा। और बाकी इस कॉन्टेस्ट के लिए इतना ही। बाय। अब सॉल्व करना भूलना मत, ठीक है, बाय।